Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Today is rainy day. I hope so. You are enjoying. Okay. Come with last lecture. We are discussing about Kirchhoff voltage law for doing circuit analysis, for solving problems in circuit analysis, right? Yes, sir. I think we have solved one problem, one numerical, based on simple Kirchhoff voltage law. Okay. In last lecture, I hope so. This we are studying this Kirchhoff. Slide show, come to slide. Okay, right? So in last lecture, we have discussed about this Ohm's law, Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff current law. I hope so. It is clear to everyone, right? Ohm's law, V is equal to IR, Kirchhoff voltage law, summation of voltages is equal to 0. And Kirchhoff's current law, summation of current is equal to 0. So we will discuss Kirchhoff current law later on. First, we will focus on Kirchhoff voltage law. In last class, we have seen that for circuit analysis, for finding voltages and currents, we need these laws. Okay? We have written the definition of Ohm's law also. Or I hope so everybody know definition of Ohm's law. Still students are joining the room. Okay, Ohm's law, V is equal to IR. It is given by George Ohm. That is why we say it is given by the scientist George Ohm. That's why the unit of Ohm's resistance is Ohm. Okay. Then Kirchhoff voltage law is given by Kirchhoff. That is why the law name is Kirchhoff voltage law and Kirchhoff current. Okay. You can see this Kirchhoff voltage law is applied on loop. Okay. Kirchhoff voltage law is applied on closed loop. You can see this is the loop, right? Kirchhoff voltage law is applied on loop and Kirchhoff current law is applied on junction. Okay. So Kirchhoff current law we'll discuss on later. We'll try to solve problems based on Kirchhoff voltage law only. Okay. So we have solved a problem based on one loop. One loop is quite easy. Now loop will increase, 2 loop, 3 loop, 4 loop. But 3 loop is more than enough because you cannot solve more than 3 equations. Up to 3 equations it is okay. Solving more than 3 equations you need a help of computer, right? Okay. Now come to Kirchhoff current law. Current law also everybody knows this. Current law is applied on any junction. I1 plus I2 is equal to I3. Incoming current is equal to outgoing current. Okay. You have already studied in your engineering 12th standard. Kirchhoff current law is summation of current at a junction, at a point, or at a node. At any node is 0. Kirchhoff current law is summation of current at any junction or point or at any node is 0. Any node में अगर आप apply करते हो currents is 0. I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. तो same sign convention रहेगा. Incoming current and outgoing current. So one current, incoming current is positive. Sorry, incoming current can be taken as positive or negative, and outgoing current can be taken as positive or negative. While studying, we'll take outgoing current positive and incoming current negative. Of course, there is a sign. Sign convention is there. One current is positive and one current is negative. So here we will take incoming current as negative and outgoing current as positive, right?
ठीक है, Kirchhoff करंट लॉ, Kirchhoff वोल्टेज लॉ एंड ओम्स लॉ. So here some sentences is written conservation laws. Both the KVL and KCL are based on conservation laws. KVL conserves voltage, KCL conserves current. Other conservation laws we know about conservation of energy and conservation of momentum, right? Same is there, law of conservation of energy, law of conservation of momentum. Like that, law of conservation of voltage and law of conservation of current is there. जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा. ठीक है. You can say conservation of current means electrons are fixed. Electrons are fixed in metals. The flow of electrons, whatever electrons are present in the metal, applying the force as a voltage, the electrons will flow in a closed path. Means same electron will move and come to same position again and again. Therefore, we need a closed path for a current to flow. आपने देखा होगा कि भी किसी भी सर्किट में हमेशा हमारे पास दो वायर्स होते हैं. अपने कंप्यूटर में अगर ऑन करें तो कंप्यूटर में 2 वायर्स होते हैं. एक वायर से फेस जाता है और न्यूट्रल से क्लोज पाथ कंट्रोल करके ऐसे घूमते रहते हैं. बस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम फेस टू न्यूट्रल ऐसे कंटिन्यूअसली फोर्स से डिराइव करते हैं. व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है, राइट? ठीक है. दिस इज लिटिल बिट theoretical part, but main our focus is on how to solve problems based on Kirchhoff voltage law. हमें n numbers of, we have to solve the n number of problems. We'll start solving problems based on Kirchhoff voltage law. We'll try to solve some problems. Okay. I will stop sharing now. We will come to board. We'll come to board and we'll see how the Kirchhoff's voltage law is applied for solving problems, right? I hope everybody having a calculator. Everybody having calculator? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Everybody know how to solve equation using calculator? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Yes, sir. Yes. All know how to solve. All of you know Yes. how to solve equations. Yes, sir. Yes, sir. I hope so. You might have used in engineering mechanics, right? In engineering mechanics, you might have solved problems by equations, 2x2 equations or 3x3 equations using calculator. Also, if anybody has any doubt or problem in solving equations using calculator, they can ask. Okay. They can ask, huh? No issue, huh? Because learning will not stop. You can learn at any moment of time, right? So simple hota hai, so now we'll try to solve problems based on Kirchhoff. Let us take one example, simple example. Say 2 ohm resistance, 10 volt, 1 ohm resistance. Here I am using 2 loops. It's a very basic problem, okay? 2 loops. Okay? One 10 volt battery, one 5 volt battery, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Okay? And we are interested in finding, we can find current as well as voltage both, huh? Right? We can find current as well as voltage using Kirchhoff voltage law. So what we have to assume first? We have to assume 2 currents. 2 loops means 2 currents. 2 loop means 2 current. First of all, decide how many loops are there. Loops means closed path or mesh. We call it as a mesh, closed path or loop. Okay? These are the technical words: loop, mesh, or closed path. Okay? So basically, what we are assuming current in a closed path. Current in a closed path or loop or mesh. Right?
We are not assuming current in a particular component. I'm not saying the current flowing through this or current flowing through this or current flowing through this or current flowing through each element. I am assuming current I1 is flowing in loop number 1 and current I2 is flowing in loop number 2. Then we will decide which current is flowing through 2 ohm, which current is flowing through 1 ohm, and which current is flowing through 3 ohm. Okay? The current which is flowing through 1 ohm resistance, the current which is flowing through 2 ohm resistance, and current which is flowing through 3 ohm resistance, that we can decide later. Okay? Look, is it clear? I1 and I2 are two currents flowing in loop number 1 and loop number 2. We have two currents, right? Now we will apply Kirchhoff voltage law in loop 1 and Kirchhoff voltage law in loop 2. I'm not dividing them. The I1 is flowing in this loop. I am saying the I1 is flowing in loop 1 and I2 is flowing in loop 2. So that is why this method is called as mesh method. This method is called as mesh method or loop method. Okay? So we are studying mesh method or loop method of Kirchhoff voltage law. Application of Kirchhoff voltage law for mesh method or loop method. Because we are assuming loop current. Okay? Then how to write a equation? We have one formula, voltage rise positive and voltage drop negative. So first, applying Kirchhoff voltage law in loop 1. Loop 1 and Kirchhoff voltage law apply. First, 10 volt rise. I can start from this and come to same point. Starting point and end point will be same. समझ रहे हैं ना? Kirchhoff voltage law मैंने कल बताया था कि Kirchhoff voltage law start एक point से शुरू होता है और पूरा घूम के आके same point में आके रुक जाता है, and that at that point the output voltage will be 0. Summation of voltage starting from one point and coming at same point, summation of that voltages is 0. So I will start from this point. First is minus to plus voltage rise. Yesterday we have studied. Negative to positive voltage rise. Voltage rise, 10 volt voltage rise. Then current flowing through 2 ohm is I1. Current देखो आप 2 ohm resistance से कितना flow हो रहा है? I1. Current flowing through this 2 ohm resistance is I1. Current flowing through this 2 ohm resistance is I1. I can write minus 2 I1. Then current flowing through 1 ohm. ये आपको चेक करना पड़ेगा. This is very difficult part. Sign convention in this part. Current flowing through 1 ohm. 1 ohm में current कितना flow हो रहा है? Just visualize it. कि from clockwise direction current flowing is 1 ohm I1 and from anti-clockwise direction current flowing is I2. करंट ऐसे कितना जा रहा है? I1. करंट I1 ऐसे जा रहा है and उधर से कितना जा रहा है? I2. There are two currents in one. 1 ohm resistance से there are the current flowing through 1 ohm resistance are two currents. I1 in clockwise direction and I2 in anti-clockwise direction. I2 नीचे से जा रहा है और I1 ऊपर से जा रहा है. इसलिए actual current flowing through current 1 ohm resistance is, you have to write 1 ohm into I1 minus I2. ये आपको देखना पड़ेगा, क्लियरली लिखना पड़ेगा. करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ohm रेजिस्टेंस इज, ऊपर से नीचे हम केवीएल वी आर अप्लाइंग लाइक दिस. केवीएल हम ऐसे अप्लाई करें तो I1 minus I2. I1 ऊपर से आ रहा है, नीचे से I2 जा. I1 minus I2 into 1. This is equal to 0. बस डायरेक्टली यू हैव टू राइट दिस इज इक्वल टू 0. voltage rise positive, voltage drop negative. Voltage rise positive, negative, negative. करंट ऐसे कितना जा रहा है? I1 minus I2 is equal to 0. Solve this equation. अगर आप इस equation को solve करोगे तो just solve this equation. What you will get? Minus 3I1 plus 1I2 is equal to 10. ये आ रहा है क्या? चेक करो. नहीं, ये नहीं आ. Plus R. This is correct. Just check it. Equation को check करो carefully. Solve it carefully. Finally अगर मैं I1 I2 को उस तरफ ले जा रहा हूँ और 10 को इस तरफ रहने दे रहा हूँ, तो finally क्या बना आपका? 3I1 minus I2 is equal to 10. Voltage rise is equal to drop. Clear? ये आ रहा है आपका सबका? Check करो. Yes, sir. This equation is coming now?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट आपको बिल्कुल केयरफुली लिखना पड़ेगा। अगर एक भी मिस्टेक आपने पॉजिटिव नेगेटिव किया, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं स्लो चल रहा हूं, इफ यू मेक अ सिंपल मिस्टेक देन यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर मीन्स रॉन्ग, कोई एक्सक्यूज नहीं है, रॉन्ग मीन्स रॉन्ग। ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन आप देखो यहाँ पे 3 ओम में करंट कितना है। सेकेंड इक्वेशन शैल आई राइट इन टॉप, मैं टॉप में लिखता हूं, आपको टॉप में थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। सेकेंड इक्वेशन आई एम राइटिंग इन टॉप, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आई एम राइटिंग इन टॉप, जस्ट सी हियर 3 ओम में करंट कितना जा रहा है, -3i2। इज इट क्लियर? करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज i2, करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज i2। i2 आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, देन I am applying KVL in clockwise direction. I am applying KVL in clockwise direction. आपको किसी को पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन में बिल्कुल कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा, जस्ट पूछ लो। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज I1। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज I2, तो ड्रॉप कितना हुआ, -3i2। देन दिस प्लस टू माइनस 5 वोल्ट में क्या होगा, वोल्टेज सोर्स में इधर से स्टार्ट किया, ये 3 ओम में -3i2, इधर 5 वोल्ट में क्या होगा, ड्रॉप, क्योंकि हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे, ड्रॉप हो गया, so this will be -5। ठीक है, 3 ओम -3i2, 5 वोल्ट -5 वोल्ट, बिकॉज इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉप। ठीक है, अब 1 ओम को थोड़ा केयरफुली देखो, ये पार्ट सी इट के वेरी केयरफुली। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रहे हैं, वी आर रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ड्रॉप हो गया, ड्रॉप हो गया। अब यहां से यहां ड्रॉप कैसे हुआ, कि करंट का ये डायरेक्शन देखना पड़ेगा, नीचे से ऊपर का करंट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो नीचे से ऊपर करंट कितना जा रहा है, I2 -I1। नीचे से ऊपर करंट कितना जा रहा है, I2 -I1। ऊपर से नीचे हमारा I1 -I2 हुआ, नीचे से ऊपर हम कभी केवीएल क्या, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं, दिस ड्रॉप, दिस ड्रॉप, दिस ड्रॉप, नीचे से ऊपर। 1 ओम में हम नीचे से ऊपर केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, केवीएल इज अप्लाइड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लोअर साइड टू अपर साइड। तो नीचे से ऊपर करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 -I1, इसलिए ड्रॉप भी कैसे हो जाएगा, -1 इंटू I2 -I1 इज इक्वल टू। ठीक है, 1 ओम रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितना हो जाएगा, -1 इंटू I2 -I1, बिकॉज वी आर KVL is applied in this direction, I2 -I1 के डायरेक्शन में KVL अप्लाई करें, तो I2 -I1 के डायरेक्शन में ड्रॉप भी लेना पड़ेगा। अगर ये आपने ये दो इक्वेशन लिख लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको फाइनली, इफ यू सॉल्व दिस फाइनली व्हाट यू विल गेट, सॉल्व करो इसे, -1 into 1i1 -4i2 is equal to 5। इक्वेशन 2 ये मिला, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिल गया। Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट? Yes, sir. नाउ यू फीड इन कैलकुलेटर, इक्वेशन मोड में जाओ, 2 वेरिएबल्स में जाओ, फीड करो a1 a2 b1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, सबको फीड करना आता है, कैलकुलेटर में आपको ऐसे फिट करना पड़ेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2, x y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 फीड करोगे तो आपको x y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब मोड में जाओ, मोड में जाके इक्वेशन में जाओ, और इक्वेशन आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल 2 है। लीनियर इक्वेशन में जाओ और फिर आपको ए बी सी की वैल्यू फीड करना पड़ेगा। अब आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है, आई डोंट नो, कैसियो का अगर कैलकुलेटर होगा तो इक्वेशन मोड में जाके आपको फीड करनी पड़ेगी। तो a1 b1 c1 की वैल्यू फीड करो, जैसे a3 मैंने फीड किया, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है, -1 है,
एंड सी की वैल्यू क्या है 10 है। A1 B1 C1 35/11 एंड सेकेंड फिर A2 B2 C2 क्या हो जाएगा 1। A1 B1 C1 3 - 1 10 फीड किया आपने। x 35/11 एक्स और वाई, एक्स नहीं लिखना है हमें, I1 x 30 I2 लिखो। तो I1 कितना आ रहा है I1 35/11 और I2 -5 I2 माइनस 5/11 I2 कितना आ रहा है I2 कितना आ रहा है -5/11 -5/11 ठीक है। तो मे भी पॉइंट में भी आ जाएगा -4.5 ऐसे जैसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप सब लोग केयरफुली फाइंड, you have to find I1 and I2 by solving two equations। तो ये सबका हो रहा है क्या, सबका आंसर आ रहा है क्या, चेक करो। मे बी ये 3 पॉइंट भी आ सकता है, 11 3 का 33 3.1 समथिंग आ सकता है। और ये 3.1818 I1 क्या आता I1 3 पॉइंट 3.1818 I2 माइनस 4.4 plus 0.4545 ठीक है। ये सबको सॉल्व करना आना चाहिए, अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप सो एवरीबडी इज गेटिंग दिस। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, ठीक है। अगर किसी को कैलकुलेटर नहीं चलाना आ रहा है तो भी पूछ सकते हैं। इन सम अदर टाइम आप फोन करके बात कर सकते हो, हम कर सकते हैं, ठीक है। सर वो एक बार सेकंड लूप का जो -1 I2 -I1 आया वो एक बार बताओ ना। ठीक है, राइट राइट। वो एक्चुअली वो आना ही चाहिए, क्योंकि आपको 100 या थाउजेंड्स ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अगर आप करंट का डायरेक्शन नहीं कर पाए, इफ यू आर नॉट एबल टू जज आंसर, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। फर्स्ट सर लूप फर्स्ट इसमें -I1 -I2 आया तो इधर से नीचे से लेके तो +I1 +1 I2 -I1 नहीं आएगा क्या? एक मिनट मैं बता रहा हूँ। आई विल क्लियर योर पॉइंट। देखो रेजिस्टेंस में क्या होता है, अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो ये ड्रॉप क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस में अगर इफ करंट फ्लोइंग इज आई, देन इट विल क्रिएट अ ड्रॉप IR, माइनस IR लेते हैं। तो करंट रेजिस्टेंस में करंट जिस डायरेक्शन में इन करता है वहां पे ड्रॉप क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब मैं इस रेजिस्टेंस का मैं बोल रहा हूं, इस रेजिस्टेंस में करंट I1 -I2 ऊपर से आ रहा है और नीचे से क्या जा रहा है I2 -I2। ये क्लियर है सबको। 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट ऊपर से नीचे यस सर। I1 -I2 और नीचे से ऊपर कितना जा रहा है I2 -I2। नीचे से करंट कितना जा रहा है I2 -I2। देखो करंट दो करंट नहीं जा रहे हैं। 5 एम्पियर करंट ऐसा जा रहा मींस -5 एम्पियर करंट ऐसे। नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। नेगेटिव करंट कुछ नहीं होता। There is no negative current. Current has only direction, only electrons flows. The current can flow in this direction or this direction. So current flowing from top to bottom is I1 -I2 and reverse is I2 -I2. Reverse current is I2 -I2. तो अगर आप यहाँ पे आप इसको I1 -I2 भी ले सकते हो करंट, और नीचे से ऊपर I2 -I1 भी ले सकते हो। दोनों में से कोई भी एक करंट ले लो, ठीक है। अब मैंने केवीएल का डायरेक्शन के कन्वीनियंट के लिए मैंने I21 -I21 लिया है, I2 -I1 लिया है। अब जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 3 -3I2 माइनस ड्रॉप। अगर मैं I21 -I1 करूंगा तो ये ड्रॉप लिखूंगा। मैंने क्या लिखा है -3I2 -5 -1 इंटू I2 -I1, ये ड्रॉप किया, ठीक है। अगर मैं I1 -I2 लेता, चलो मैं I1 -I2 ले लेता, इसे लेता ही नहीं। अगर मैं I1 -I2 लेता तो ऊपर से नीचे ड्रॉप होता, ठीक है। अगर मैं I1 -I2 लेता, तो देखो सर क्लियर नहीं दिख रहा। ऊपर से करंट I1 -I2 आ रहा है, ठीक है।
ऊपर से करंट I1 माइनस I2 आ रहा है ना, तो ऊपर से ड्रॉप कितना क्लियर करेगा, प्लस माइनस। तो अगर मैं ऊपर से ही करंट लेता तो ऊपर प्लस होता, नीचे माइनस होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, मेरे को ये माइनस से प्लस राइट से लेना पड़ता, +1 I1 माइनस I2 लेता तो मुझे +1 करना, क्योंकि केवीएल मैं कहां से ले रहा हूं, नीचे से ऊपर ले रहा हूं। केवीएल का डायरेक्शन क्या है मेरा, नीचे से ऊपर, और नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में राइज हो रहा है क्योंकि करंट ऊपर से आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे हो गया I1 माइनस I2, एंड केवीएल का डायरेक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर मैं अगर जाऊंगा, नीचे से ऊपर जाऊंगा तो I1 माइनस I2 लूंगा तो मुझे यहां प्लस लेना, अगर मैं यहां प्लस लूंगा तो बात एक ही हो जाएगी, आइदर आई कैन राइट +1 I1 माइनस I2 और -1 I2 माइनस I1। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन देन इट विल गेट मोर क्लियर। अच्छा, बोर्ड की विजिबिलिटी थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना, साउंड इज क्लियर बट बोर्ड विजिबिलिटी, हाँ सर, हाँ सर, वो बोर्ड का दिखता नहीं, ब्लर ब्लर दिखता, वैल्यू भी दिख नहीं ही दिख नहीं रही। रहा सर, पूरा ब्लर दिख रहा। ठीक है, लेट्स सी। अभी मैं थोड़ा सा सर जूम करो थोड़ा। थोड़ा सा आई विल चेंज द कैमरा, वो लैपटॉप के कैमरा से दिख नहीं रहा है, मैं कल कुछ दूसरा कैमरा लगाता हूँ और मैंने देखा हूँ कि बोर्ड थोड़ा सा बोर्ड में थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, विल सी, बट लेट्स ट्राई टू कोऑपरेट। अभी एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करो, एक क्वेश्चन आज करो फिर से। Let us try to solve this. Two ohm, 5 ohm. अब try to write the equations. Equation लिखने की कोशिश करो, loop 1 I1, loop 2 I2. Try to write the equations for loop 1 I1 and loop 2 I2. इसको इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, just try to write. तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, अप्लाइंग क्रिश्चॉफ वोल्टेज लॉ इन दिस डायरेक्शन। एक्चुअली क्रिश्चॉफ वोल्टेज लॉ आप जब से अप्लाई करते हो, एक वन पॉइंट से लेके घूम के आते हो, तो हर जगह आपको वोल्टेज राइज हो रहा, ड्रॉप हो रहा, राइज हो रहा, ड्रॉप हो रहा, वो देखना पड़े, वेदर इट इज ए वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप, दिस यू हैव टू सी वेरी केयरफुल। तो शैल आई राइट द इक्वेशन, इक्वेशन क्या हो जाएगा, सबने एक फिगर बना लिया, आई होप सो, थोड़ा तो विजिबल तो है, वैल्यूज दिख रही है ना, 15 वोल्ट, 5 ओम, I1, 6 ओम, 2 ओम, 9 ओम, 2 वोल्ट I2, ठीक है। सेकेंड लूप में जो वैल्यूज है, सेकेंड लूप में जो वैल्यू, सेकंड लूप में वो रजिस्टर की वैल्यू 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 9 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 9 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 9 ओम एंड 2 वोल्ट, ठीक है। I will write the equation, 15 राइज, सबको क्लियर दिख रहा है, 15 वोल्ट राइज, ये पॉजिटिव ले लेंगे हम, 15 वोल्ट पॉजिटिव, माइनस 5 I1, करंट फ्लोइंग इन 5 ओम, 1 ओम I1, एंड यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, I1 माइनस I2, I1 ऐसा जा रहा है, I2 ऐसा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, -2 I1 माइनस I2, -2 I1 माइनस I2, और ये प्लस से माइनस ड्रॉप, ये देखो ऐसा घूम रहा हूं, प्लस से माइनस ड्रॉप, एंड ड्रॉप इज टेकन एज -2 वोल्ट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है अभी। 15 वोल्ट राइज, -5 I1, 5 I1, ठीक है, -5 I1, -2 I1 माइनस I2, I1 ऐसा जा रहा है, I2 ऐसा जा रहा है, तो -5 -2 I1 माइनस I2, और फिर 2 वोल्ट ड्रॉप है, दो 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 हो गए तो कंफ्यूज नहीं होना, एक 2 वोल्ट है और एक 2 ओम है, ठीक है, क्लियर है सबको, इसमें किसी को कंफ्यूजन,
इस इक्वेशन में किसी को कंफ्यूजन है क्या? एनीबॉडी नो सर। इन दिस इक्वेशन? नो सर। No, sir. इसको सॉल्व कर लो और इक्वेशन बना लो, थोड़ा क्लियर सॉल्व कर लोगे तो 15 में से 2 गया, 13 बच गया, और उस वैल्यूज को पूरा वहां पे चले जाओगे तो 5 और 2 7 i1 हो जाएगा। आप 2 स्टेप में सॉल्व करो इसको, एक स्टेप में मत करो। 5 और 7 और ये -2i2 इज इक्वल टू 13 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है सबका? बन गया इक्वेशन नंबर 1, राइट? यस सर। टेक योर टाइम, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर धीरे धीरे अच्छे से कर सकते। नाउ राइट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मैं लिख रहा हूं, 6 ओम में ड्रॉप कितना हो जाएगा? -6i2। 9 ओम में ड्रॉप कितना होगा? करंट i2 ही जा रहा, 9 ओम में भी i2 करंट है, 6 में भी i2, -9i2। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, और घूम के वहीं आ रहा हूं। तो 6 ओम में ड्रॉप क्या हो गया? -6i2। 9 ओम में -9i2, राइट? -6i2 -9i2। अब देखो मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, नीचे से ऊपर जा रहा हूं, नीचे से ऊपर क्या हो रहा है? माइनस से प्लस राइज, माइनस से प्लस राइज, राइज हो रहा मीन्स 2 वोल्ट राइज हो रहा, तो +2 लेना पड़ेगा। यहां पे अगर आपने -2 लिया तो आंसर 0 हो जाएगा। मैं यहां पे इस केवीएल में प्लस से माइनस ड्रॉप, प्लस से माइनस ड्रॉप, इस केवीएल में माइनस से प्लस राइज, तो 2 वोल्ट जो वोल्टेज सोर्स है उसमें क्या हो रहा है? आपका राइज हो रहा है, इसलिए क्या लिखा मैंने? +2 लिखा। एंड अब 2 ओम में ड्रॉप, बस मैं नीचे से ऊपर करंट देखूंगा, क्योंकि केवीएल में नीचे से ऊपर जा रहा हूं, मैं केवीएल नीचे से ऊपर जा रहा हूं, तो मैं नीचे से ऊपर ही करंट देखूंगा। मुझे केवीएल नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो मैं नीचे से ऊपर करंट देखूंगा। नीचे से ऊपर करंट कितना जा रहा है? ऊपर से नीचे i1 i2, नीचे से ऊपर i2 i1। सीधा सीधा आप डायरेक्टली लिख सकते हो -2 into i2 i1 is equal to 0। बस ये इक्वेशन सॉल्व कर लोगे तो आपका हो गया खत्म। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया तो आपका फाइनल ये सॉल्व। अब एक किसी को कंफ्यूजन है क्या? एनीबॉडी हैविंग कंफ्यूजन? सर वो i1 i2 और i2 i1 के आगे में दोनों इसमें माइनस ही लगेगा क्या सर? एक लूप में प्लस और एक लूप में माइनस नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली ना थोड़ा सा तुमका कंफ्यूज हो रहा। मैंने यहां पे फर्स्ट लूप में i1 i2 लिखा है और सेकेंड में i2 i1। अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है ना तो फिर यहां पे करंट i1 i2 लिखो, i1 i2 लिखो और इसको प्लस कर दो तो बात एक ही होगी। तुम इक्वेशन सॉल्व करो, एक ही बात हो जाएगी। क्योंकि ऊपर से नीचे आप करंट देखोगे तो नीचे से राइज दिखेगा, तो राइज दिखेगा तो आपको प्लस करना पड़ेगा। तो अगर तुम i1 i2 लिखोगे, इफ यू राइट i1 i2 इन दोनों इक्वेशन, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? हाँ सर, समझा समझा। मैं क्या कर रहा हूं कि हमेशा करंट जो है, मैं करंट को क्या देख रहा हूं? मैं हमेशा करंट को अपने केवीएल के डायरेक्शन में देख रहा हूं। मैं यहां देख रहा हूं ना, मैं केवीएल के डायरेक्शन में करंट देख रहा हूं। करंट कितना है? i2 इसी डायरेक्शन में है तो -6i2, i2 इसी डायरेक्शन में -9i2। अब ऐसा करंट कितना है मेरे पास? नीचे से ऊपर क्या है? i2 i1, इसलिए i2 i1 मैंने माइनस लिया। मैं करंट के डायरेक्शन में केवीएल चला रहा हूं और ड्रॉप ले रहा हूं। मैंने क्या किया? हर रेजिस्टेंस में ड्रॉप लिया और उसी डायरेक्शन में करंट देखा। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर। तो होप सो i1 की वैल्यू क्या हो रही है? -2 और ये 2i1 हो रही है, और i2 कितना हो रहा है? 9 2 11 प्लस 11i2 इज इक्वल टू -2। ऐसा कुछ बन रहा है इक्वेशन। 18 हो रहा है ना? 18i2 इज इक्वल टू -9 -6 -15 और -2 -17 ठीक है, इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, एक मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करके लाना।
ठीक है, कैलकुलेटर में फीड करके सॉल्व कर लोगे आप लोग सर, ठीक है, आई होप सर सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे होमवर्क दे रहा हूँ, 100 वोल्ट, 25 वोल्ट, 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, इसको आप सॉल्व करके लाना, ठीक है। अब आपको इसमें क्वेश्चन क्या है कि I1 निकालना है, I2 निकालना है, फिर हर एलिमेंट का करंट निकालना है, करंट थ्रू 10 ओम निकालना है, करंट थ्रू 50 ओम निकालना है, करंट थ्रू 20 ओम निकालना है। दिस इज 20, ठीक है, तीनों से करंट निकालना है। और आप एक आध बुक इश्यू कराओ लाइब्रेरी वगैरह में आके और सर्किट प्रॉब्लम्स थोड़ा सॉल्व करो, फिर हम फ्लो में आएंगे, ठीक है। सबको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, खाली बैठना नहीं है। आप इंटरनेट से भी प्रॉब्लम्स, सर्किट एनालिसिस के प्रॉब्लम्स देखो, केवीएल केसीएल के प्रॉब्लम्स देखो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो हम डिस्कस कर सकते बाद में, ठीक है। सर वो 50 है क्या 10 ओम के साइड का? 10 ओम, 100 वोल्ट, 20 ओम, 50 ओम, 25 वोल्ट, ये 50 है, ये 10 ठीक है सर। ईच का 20, ठीक है। थोड़ा सा रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ मोबाइल के कैमरे से, कोशिश करता हूँ नेक्स्ट क्लास में। मे बी मोबाइल के कुछ, आजकल मोबाइल में ज्यादा रिजोल्यूशन आता है एज कम्पेयर टू लैपटॉप, अगर वो अच्छे से कवर करेगा तो हम उसमें देखेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर्ड हो रही है, राइट। एनीबडी हैविंग एनी अदर क्वेश्चंस, क्यूरीज? हम यहाँ पे स्टॉप करें, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो डू प्रैक्टिस, और जितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते सॉल्व करके देखो, ठीक है। 100 वोल्ट इनपुट है, 100 वोल्ट, 25 वोल्ट, 10 ओम, 20 ओम, 50, 2 मिनट में हो जाएगा, आप सॉल्व कर लो, ठीक है। और कैलकुलेटर वगैरह चलाओ, आप किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, ठीक है ना, राइट। आप अपने फ्रेंड से पूछ लो, आपस में डिस्कस करके सॉल्व कर लो कैलकुलेटर का प्रॉब्लम। अगर नहीं जम रहा तो फिर मुझसे भी पूछ सकते हो, और यू कैन कम कॉलेज ऑल्सो, राइट। कभी आपको एक आध बार कॉलेज आना है तो आ सकते हो, ठीक है, देन वी कैन डिस्कस, मीन्स कभी एक आध बार।